برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سلمان نظری کا بہت پیارا سا بسم اللہ تقریر ہے الرحمن دوستو، آپ الرحیم۔ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں تاکہ آپ کو سب کو وَأَمَّا معلوم بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم ویسے یہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں اور اللہ کا یہ مقدس گھر ہے۔ یہاں پر تعظیم، عبادت خالص اللہ کی ہوتی ہے۔ یہاں سارے انسان برابر ہیں۔ ہم میں سے دنیاوی اعتبار سے چاہے کسی بھی مقام کا حامل ہو، لیکن یہ گھر ایسا ہے جہاں پر سب کے سب برابر ہیں۔ امیر غریب، فقیر غنی، سب ایک صف میں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے عزیزوں، اور اس خصوصیت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ایک بات، بہت مختصر سا وقت ہے، مولانا نے تو اس کو جلسہ بنا دیا، ورنہ تو یہ جمعہ ہی ہے۔ جمعہ الگ ہوتا ہے، جلسہ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، بہت صحیح۔ بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے۔ ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو، کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ یہ پوری دنیا کی واحد قوم، ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا، سرچ کر کے، سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے سب نے اپنے اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ طعنہ مارتے ہیں کچھ، جیسے ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم سب نے پکارا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو، جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔
बिना देखे ये हाल है कि हम अपनी माओं को और अपने बाप को बचपन से देखा है, बावजूद उसके हम अपनी माँ और बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अता किया हुआ है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि दुनिया इसी में परेशान है कि कैसी कौम है, ना अपने खुदा को देखिए ना अपने नबी को देखिए, लेकिन दूसरों की बनिस्बत इस कौम का हाल ये है, दूसरों को प्रचार कर कर के बुलाना पड़ता है और ये बिना ऐलान के जुमा में भर जाया करते हैं। आज तक कभी जुमा का पोस्टर लगता हुआ देखा आपने कि इस मस्जिद में जुमा की नमाज होने वाली है? बचपन से कभी सुना आपने? एक अजान होती है सारी सफें भर रही है। हर मस्जिद का हाल है। जुमा में कौन तुम्हें दावत देकर बुलाता है? मुअज्जिन साहब घर घर जाते हैं, पोस्टर लगाया जाता है, प्रचार किया जाता है? नहीं। इस बात से तो दुनिया खौफजदा है कि आखिर इनको कौन जमा करता है इन सफों में, और सफों में आने के बाद किसी की कोई वीआईपी सफ नहीं है। जो पहले आया वो पहले बैठ गया। वो किसान का बच्चा भी सामने बैठ सकता है, किसी गरीब मजदूर का बच्चा भी पहली सफ में बैठ सकता है, और बादशाह अगर ताखीर से आए तो पीछे ही बैठा रहे। ये निजाम कहां से है? ये आज तक इनको कौन बना कर रखा है? दुनिया इस बात से खौफजदा है मेरे अजीजों। ये वो चीजें हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा मौर्रिख है, अंग्रेज, और उसने ये लिखा है कि बहुत सारे दुनिया में रेवोल्यूशन आए, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, जैसे मार्क्स का, लीनिन का, और भी कई ऐसे बड़े बड़े शख्सियात आई। उन्होंने दुनिया के निजाम को बदलने की कोशिशें की, लेकिन उनका इनकलाब, उनका रेवोल्यूशन 100 साल से ज्यादा तक नहीं चला। उनके अपने शागिर्द जब तक थे तब तक उनके इनकलाब में दम था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है दुनिया में एक ही इनकलाब मैंने देखा है, 14 सदियों के बाद भी आज भी पूरी ताकत के साथ कायम है, और वो इनकलाब है मक्का की सरजमीन से उठा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से लाया हुआ, और मदीने के बादिया नशीन बगैर चप्पल के एक लिबास में चलने वाले वो सहाबा का लाया हुआ इनकलाब है। और जमाना बदलता गया, हुकूमतें बदलती गई, कितने तूफान आए, कितने अंधेरियां, कितने क्या क्या आए, लेकिन उस इनकलाब में आज भी वो दम है, आज भी वो असर है कि एक बार अगर इनके नबी को कोई छेड़ ले तो पूरी दुनिया में ये सड़कों पर आ जाता। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये जान अभी तक बाकी क्यों है? 1400 साल हो गए, ये जान बाकी है। आपको पता है, मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, तवज्जो। ये जुमा आज तक हमारे सलामत हैं। कितने दरिंदे आए अजानें बंद करने के लिए, कुरान पर पाबंदियां लगाने के लिए, क्या क्या नहीं किया। 1400 साल यूं ही नहीं गुजरे हमारे। लोग कहते हैं आज हालात खराब हैं, इससे भी बड़े हालात खराब होके गए। चंगेज आया, हलाकू आया, जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, बगदाद की पूरी सरजमीन को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। उस वक्त जब इस्लाम नहीं रुका तो आज के नशेड़ियों से क्या इस्लाम रुकेगा? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हालात आए और गए, लेकिन आज तक ये जो जान बाकी है, कौन तुम्हें जमा करता है आज? वैसे तो मुसलमान किसी की जल्दी मानने वाले नहीं, किसी को कायद भी नहीं मानते। कोई हमारा एक लीडर ऐसा है नहीं जो सबको जमा कर दे। उसके बावजूद भी इन सफों में कौन जमा करता है? इमाम की भी वो हैसियत नहीं है तुम्हें जमा करने की। भाई इमाम की हैसियत को क्या है वो तो हम जानते हैं। हर मस्जिद का वो बेचारा वो अपने ही घर बार की फिक्र में है। लोग उसको खाली जुमा और इमामत के तौर पर देखते हैं, बाकी जमा करने की ताकत ये पूरी वो ना इमाम की है ना मुअज्जिन की है, और बड़े नेता की भी नहीं। जब इनका कोई बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा कायद नहीं, तो ये लाखों की तादाद में सफों में इनको हर जुमा कौन जमा करता है? और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में कौन जमा करता है? ये रमक, ये दमक आज तक इनके चेहरों पर बाकी क्यों है? आज पूरी दुनिया तुम्हें आतंकवाद का एक लेबल लगाने के लिए क्या क्या नहीं हरबे इस्तेमाल किए, पूरी मीडिया का इस्तेमाल किया। दाढ़ी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है, टोपी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है। सब प्रोपेगेंडे के बावजूद न टोपी उतरी न दाढ़ी उतरी। आज भी है या नहीं है? इसलिए मैं बताना ये चाहता हूं कि ये रमक, ये दमक, ये जान आज तक बाकी क्यों है? इसलिए कि हमारा रसूल जिंदा है तो दीन भी जिंदा है। रसूल जिंदा है
اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. وہ ہیں آج بھی ہمارے درمیان. اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے. اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آقا نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے. جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ کے چلو. جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے. اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے. دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سب خاموشی سے سنتے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے. تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ. نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی. وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا. سلمان اجری کا بہت پیارا سا وہی تقریر ہے پڑھو. دوستو، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کیوں سنیں آج تک تاکہ کوئی آپ بھی کو چیز سب کو جب ہم معلوم پڑے. دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے. لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے. لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں. تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے. تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا، مولانا سے بھی نہیں پوچھا، بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں، تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں، اس میں یہی پرانا ہے. بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا. آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا اب کچھ نیا سناؤ. کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا. ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی، کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں. یہ جمعہ کی جماعت، یہ قرآن کی حقانیت، یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے. ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، لائے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے کتنے. بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں. یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے. جو انجیل بائبل
ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सब बदली हुई हैं। और हमारे यहाँ की किताबें, हमारे देश में जो बहुत सारी मुकद्दस किताबें मानी जाती हैं, इनमें भी हेर फेर, इधर उधर बदलाव अलग अलग है। लेकिन अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, हिंद से लेकर के आप किसी भी कोने तक जाओ, कुरान सूरह फातिहा से शुरू होता है, वन्नास पर ही खत्म होता है। फिरके बहुत हुए दीन में, इस्लाम में बहुत सारे फिरके हुए, लेकिन इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं आया। कुरान के 30 पारे और 114 सूरतें जो सहाबा के जमाने में थी, वो आज भी वही मौजूद है। इस कलाम पाक पर किसी का असर क्यों नहीं हुआ आज तक? कोई कुरान नहीं बदल पाया, कोई एक पारा तो छोड़ो, एक सूरा तो छोड़ो, एक हरफ भी नहीं बदल पाया। जबर, जेर और नुक्ते भी इसके बदल नहीं पाए। 1400 साल से एक किताब चली आ रही है, इस किताब को कोई नहीं बदल पाया। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें ये फख्र वाली बातें बता रहा हूं, इससे बढ़ करके दौलत जाओ ढूंढ करके निकालो, किसी के पास नहीं मिल सकती। फिर तुम किस बात के मायूसी में जीते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ी दौलतें जिसके पास है, उसे सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जीना चाहिए। दुनिया में सर उठा करके जियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दी हुई ये सारी निशानियां तुम्हारे पास मौजूद से सुनिए। चलो हम कहानियों, जिसको ये लोग कहते हैं कहानियां हैं, गौसे पाक की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, गरीब नवाज की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाकया सुनाओ तो कहते कहानी है। तुमको ये लगता है पुरानी बातें कहानियां हैं तो ठीक है, लेकिन जो कुरान आज तक मौजूद है, इसका जवाब तो ला करके देते। ये जो कुरान है, ये तो कहानी नहीं, तुम्हारे पास है। और कुरान जगह जगह चैलेंज करता है। अल्लाह खुद फरमाता है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर हिम्मत है तो इसकी तरह की एक सूरह बना करके लाओ। और ये 1400 साल पहले किया हुआ चैलेंज है। आज तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी में कहां तक जा चुकी है। पेट्रोल, मिसाइल और मिनटों में इधर से उधर सफर करने वाले इन सारे टेक्नोलॉजी के बादशाहों से क्यों नहीं पूछते कि एक कुरान क्यों नहीं बना पाते, क्यों नहीं लाए? मेरे अजीजों, अल्लाह का ये वादा है। अल्लाह फरमाता, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हादल कुरान ला यअतून बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल पाक, आप कह दें, सारे इंसान मिल जाएं, सारे जिन्नात मिल जाएं, सब मिल करके एक दूसरे की मदद करके ऐसा कुरान बनाना चाहें, अल्लाह फरमाता है तब भी वो नहीं ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे। अल्लाह का वादा है। तो आज तक जो इस किताब का मिसल नहीं ला सका, वो किताब तुम्हारे पास है, वो कुरान तुम्हारे पास है। मुझे बताओ, इससे बढ़ करके दौलत और क्या है? इससे बढ़ करके दौलत क्या है तुम्हारे पास? ये जिंदा जावेद मौजज़े हैं। अब ये सब चीजों के बाद फिर मैं आपसे आखिर में इतना कहना चाहूंगा, जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं, उसको आला हजरत की ये बात सुनना चाहिए। आला हजरत क्या कहते हैं? सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार सूने का लफ्ज इस्तेमाल किया। सूना पास है तेरे, इसका मतलब क्या है? गोल्ड। सूना पास है, सूना बन है। बन कहते हैं जंगल को। सूना जंगल सुना है ना, खाली पड़ा हुआ जंगल है सलमान रजी जहाँ का दरिंदे, प्यारा सा उसको तकरीर सूना है जंगल दोस्तों, आप कहते ज्यादा से ज्यादा हैं। इसको सूना सुनिए पास है तेरे, ताकि गोल्ड आपको पास सबको मालूम और पड़े। जंगल वाला राज है। और ऐसे वक्त में सो करके रहना, ये तो जहर है, उठ प्यारे। ऐसे वक्त में सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मती निराली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। 3 लफ्ज आला हजरत ने कहा। ये दुनिया कैसी है मालूम है? ये कातिल है, ये डायन है, ये शोहर कुश है। ऐसी औरत के ये 3 लकब है। कातिल मतलब मर्डर करने वाली, और डायन कहते हैं वो औरत जो रोज शोहर बदलती हो, रोज शोहर बदलती हो, उसको डायन कहते हैं। ये औरत के लिए गाली है। और शोहर कुश किसको कहते हैं? शोहर बदलने वाली तो डायन है, लेकिन अपने ही शोहर को मार देती हो, वो शोहर कुश है। दुनिया को आला हज़रत कहते हैं 3 चीजें ये दुनिया के अंदर है। जो इससे मोहब्बत करता है,
जो इसके पीछे भागता है ये दुनिया उसको मर्डर करती है, उसका कत्ल करती है और फिर बदल लेती है, दूसरा आ जाता है। आज लाख रुपए तुम्हारे जेब में, कल ये पैसे किसी और के जेब में। ये रोज बदलती है अपना आशिक, और फिर जो इससे इश्क करता है उसको मार भी डालती है, मार डालती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं उसे सोना जेब नहीं देता, उसे गफलत की नींद जेब नहीं देती, उसे बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। इसलिए जियो तो शेरों की जिंदगी जियो। और मेरे इलाके के शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। बुज़दिलों की तरह घुट घुट करके लंबा जीने से बेहतर है अलल ऐलान एक दिन जी करके चले जाएं। इसलिए कि हमें पता है तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आपको डर किस बात का? आप मुजरिम कौम से हैं, आप चोर कौम से हैं, आपका क्या खौफ है, किस बात का डर है? क्या कुरान झूठा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई कमी है? मेरे नबी पाक के अखलाक में कोई कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, तो फिर डरना और सहमना क्या? मेरे अजीजों, आप सब अगर इस बात का इंतजार करते रहें, जैसे कहते हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े खराब हैं, एक बात याद रखो, जो बंदा ये सोचता है कि पूरी ट्रैफिक खाली हो तब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, तो फिर वो बूढ़ा वैसे ही हो जाए। हाँ, गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में आओ, सुनिए, आपको उसी में सीखना पड़ेगा। इधर उधर के अड़े तीड़े आते ही रहेंगे, उनके बीच में ही तुम ड्राइवर बन सकते हो। चलना सीखो और इन्हीं हालात से गुजर करके निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत के साथ तुम्हें जमा फरमाएगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो घर में बैठ करके मांग रही है कि मदद आ जाए, मदद आ जाए। अगर ऐसी ही मदद आती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर बदर तक नहीं जाते, वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो अल्लाह मुशरिकीन को वैसे ही हिलाक कर देता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हाथ उठा देते, उहद के सारे मुशरिकीन वैसे ही मर जाते। मेरे नबी अपने घर से निकले, सहाबा अपने घर से निकले, मैदानों में आए और अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये उम्मत को बताने के लिए कि उम्मत का मिजाज ऐसा ना हो कि कुछ भी मुसीबत आई, फातिहा दिलाया, दुआ किया, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं और इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, चादर ओढ़ के सो गया। मेरे अजीजों, ये मुजाहिदीन की जिंदगी नहीं है। मुजाहिदीन की जिंदगी ये नहीं होती, मोमिनीन की जिंदगी भी ये नहीं होती, बल्कि मोमिनीन की जिंदगी ये है जब तक अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, हक बात का ऐलान करके जाओ। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हो तो कभी दिल पर हाथ रख करके सोचो, एक बार सिर्फ अगर इमाम हुसैन समझौता कर लेते तो उनका पूरा खानदान बच गया होता। उनका खानदान बचना क्या, मदीने की गवर्नरी मिल जाती, बहुत बड़ी वजारत मिल जाती। लेकिन हुसैन आजम का मिजाज ये था, नहीं, जब कुफ्र और शिर्क या फिस्क और फुजूर छा रहा हो उस वक्त समझौते नहीं किए जाते, उस वक्त मैदान में निकलकर हक बात का ऐलान किया जाता है, चाहे गर्दन भी चली जाए। हुसैन का ये मिजाज है, हम यही ऐलान करना चाहते हैं, अगर गर्दन चली भी जाती है हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम परवाने हैं और शमा के अतराफ मिटना ही परवाने का काम है। शमा के इर्द गिर्द मिट जाना ही परवाने का काम है। और खत्म होने से किसी के इस्लाम खत्म नहीं होता, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, आप जिस तरीके कार को जो नौजवानों ने आज पकड़ रखा है उससे तौबा कर लें। ये नशा का माहौल, ये खराबियों का माहौल, ये जो दौर दौरा चल पड़ा है, ए नौजवानों, ये तुम्हारी जिंदगी को सेब नहीं देता। ये शिवा उम्मत मुस्तफा का नहीं है। कुरान में जिस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत कहा है, सबसे बेहतरीन उम्मत, क्या वो बेहतरीन उम्मत आज नशा के अड्डों पर बैठ सकती है? क्या वो बेहतरीन उम्मत
ताश के पत्तों पे अपनी जिंदगी गुजारे? मुफ्ती क्या सलमान वो नजरी का बेहतरीन बहुत उम्मत प्यारा सा रात तकरीर है भर दोस्तों, आप ये ज़्यादा से सारे ज़्यादा सोशल इसको मीडिया सुनिए, पर अपना वक्त ताकि बर्बाद आपको करे? सबको मालूम पड़े। ये खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने तुम्हें कुरान में अता किया, उसका पासो लिहाज तो रखो। बहुत सही। और तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना महफूज रखा, इतना महफूज रखा, कसम रब्बे जुल जलाल की मैं आपको बताऊं, अभी भी हम जुमा पढ़ेंगे, आपकी पेशानियां सजदे में जाती, सबकी पेशानियां सजदे में जा रही। एक बात का ख्याल रखना, इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? वो रिस्क की है, खाने की है। खाना खाए बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। माल ना हो, कपड़े ना हो तो भी जी लेगा, घर ना हो तो भी जी लेगा, खाने के बगैर नहीं रह सकता। खाना तो उसके लिए, ये तो पेट्रोल है, बगैर उसके इंजन चले कैसे? लेकिन आपने कभी महसूस किया, बकरी को भी खाते हुए देखा आपने, बैल को भी खाते हुए देखा, भैंस को भी खाते देखा, ऊंट को भी देखा होगा, जिसको भी देखा होगा। जानवरों में अक्सर और बेशतर, अक्सर, हत्ता के शेर को ही ले लो, वो जब भी खाते हैं तो चाट के खाते हैं जमीन पर। खाना कुछ भी डालो आप, चारा, बकरी सर झुका कर खाएगी, बैल सर झुका कर खाएगा, भैंस सर झुका कर खाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ रब तबारक व तआला की इस अता पर कि अल्लाह ने तुम्हारा सर रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया। क्यों? जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में वो रिज्क है। रब ताला ने हाथ दिए, उठाओ और खाओ, इसलिए कि पेशानी उस रिज्क के सामने नहीं झुकनी है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। इस पेशानी को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इतना महफूज कि हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज पर भी नहीं झुकते। ना हम औलिया के सामने झुकते हैं, ना हम रसूलों के सामने, नबियों के सामने, किसी के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं है। सजदा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये हमारी शरीयत है कि नहीं है? सजदा किसी के लिए नहीं जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपने नबी को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रसूलुल्लाह का है। ये पेशानी इतनी महफूज अल्लाह ने रखी, खालिस अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। आज उस पेशानी का हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके किसके सामने झुक गए। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर तुम दुनिया के सामने झुकते रहोगे, जलील होते ही रहोगे, जलील होते ही रहोगे, और एक जगह नहीं, 1000 जगह झुकना पड़ेगा, 1000 जगह। और इकबाल इसी को कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक बार यहां जो झुक गया, अल्लाह उसको दूसरी जगह झुकने नहीं देता, तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल देखा भी है। ये सारी चीजें कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मजबूती से खड़ा होता है, अल्लाह हालात उसके लिए वैसे ही मुनासिब फरमा देता है। हमने अपने सफर में देखे, कैसे कैसों को देखा है। हम लोग ये सोचते होंगे वहां ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बहुत कुछ बातें अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमने जो देखा है, अच्छे अच्छों के दिलों को नरम होते हुए भी देखा है। हम खड़े हैं तो कुछ लोगों को ताजीम करते हुए भी देखा है। 9-9 घंटे का सफर किया, और वो भी डिपार्टमेंट के सारे लोग बंदूक ताने हुए, हथकड़ियां बांधे हुए, सारे ऐसे भी सफर किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर आपके सामने अर्ज करता हूं, जब नमाज का वक्त आता, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, उस भरी गाड़ी में भी अगर मैं कहता मुझे नमाज पढ़ना है, सारे रोक लेते और हमारी नमाज भी पढ़ा देते थे। हमारा अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो गन ताने हुए लोग भी हमें हमारी चादर पर नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। कई मर्तबा गाड़ी को रुकाया गया, वहां नमाजें अदा हुई। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इस बात के लिए कह रहा हूं कि रब के सामने जो झुकता है, अल्लाह दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है, और रास्ते उसके लिए अल्लाह हमवार फरमाता है। तुम बहाने करते रहोगे, 1000 बहाने आते रहेंगे। एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, मौला 70 दरवाजे खोल देता है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये जलसा नहीं था, ये जुमा है, लेकिन बहरहाल आपका जोश जुमा को भी जलसा बना ही देता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मीरज की सुन्नियत को हमेशा शाद व आबाद रखे, औलिया कामिलीन के गुलामों को अल्लाह ताला खुशहाल रखे।
اور ہر گھر کی سنیت اور یہاں کے عقیدہ اہل سنت کو اللہ محفوظ رکھے. قیامت تک تمہاری نسلوں میں مولا عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے. ہماری اولاد کو ہمارے خاندانوں کو اللہ بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.